जो हिस्ट्री का चैप्टर 2। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? Good morning, students. Okay, we were covering the second lesson of history, and today we will cover the topic war with the Marathas. As far as the war with the Marathas were concerned, we see that after the defeat of the Marathas in the third battle of Panipat, okay, the third battle of Panipat was fought in the year 1761 between the Durrani Empire and the Marathas, and we see that the Marathas were defeated. Okay, they were badly defeated. Okay, and we see that still after the defeat of the Marathas in the third battle of Panipat, okay, their dream of ruling Delhi was completely shattered. Their dream of ruling Delhi was completely shattered. Now they were divided into many states under different chiefs or sardars belonging to dynasties such as Sindhya, Bhosle, Holkar, Gaikwad. Okay, तो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में जो है मराठा किंगडम जो है वो बट गया था, विभाजित हो गया था। और इसमें हम देखते हैं कि ये सारे चीफ्स जो हैं एक कॉन्फेडरेसी एक तैयार करते हैं। कॉन्फेडरेसी मीन्स एन अलायंस, ओके, अंडर अ कॉमन लीडर, एंड दिस लीडर इज नोन एज द प्रिंसिपल मिनिस्टर और द पेशवा। ओके, एंड वी सी दैट द पेशवा अगेन reunites these chiefs, okay, and tries to raise war against the British. And we see that the first Maratha war, one after the other, 3 wars were fought between the, okay, 3 wars were fought between the Marathas and the British. Okay, as far as the first Maratha war was concerned, what we see is, okay, after the death of Madhav Rao, the first Anglo-Maratha war. Yesterday somebody asked me what is the meaning of the word Anglo. The word Anglo means, okay, relation with the England और Britain. Okay, एंग्लो हम उन लोगों को बोलते हैं जो ब्रिटेन के जो निवासी होते हैं, जो इंग्लैंड के होते हैं. Okay, these people they are called Anglo. Okay, so we see that the first Anglo-Maratha war, it was fought between the time period 1775 to 1782. Okay, this was the time period, and we see that Madhav Rao had died. माधव राव की मृत्यु हो जाती है 1772 में, और उनके बाद जो है जो भावी पेशवा होगा, इस चीज को लेके जो है, ओके, मराठों में मतभेद हो जाता है. एक गुट जो होता है, जो माधव राव के उत्तराधिकारी है नारायण राव, उनके पक्ष में रहता है, और दूसरा गुट जो है नारायण राव के जो चाचा हैं, ओके, नारायण राव के जो चाचा हैं राघोबा, उनके पक्ष में जो है वो दूसरा जो है गुट तैयार हो जाता है. सो व्हाट वी सी इज माधव राव डाइड, okay, in 1772, and we see that the British they supported the claim of Raghunath Rao, also known as Raghoba. Okay, he was the uncle of Narayan Rao. नारायण राव जो है, नारायण राव जो है ये माधव राव के पुत्र हैं, और उनको जो है उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए. He should be the next Peshwa, but we see that Raghunath Rao is claiming to be the next Peshwa, and the British are supporting him. Okay, what we see, okay, in this situation, what happens? Narayan Rao's brother,
he succeeded the throne. Narayan Rao's brother, he succeeded the throne, but he was murdered. ओके नारायण राव के भाई जो है वो गद्दी पे आसीन होते हैं, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मानव जो माइनर हैं, ओके, नारायण राव के जो पुत्र हैं वो जो है एक माइनर रहते हैं। तो हम देखते हैं कि सवाई माधव राव, सवाई माधव राव, okay, he is the son of Narayan Rao. Savai Madhav Rao, who is a minor, is made the next Peshwa. He is made the next Peshwa. Okay? और इनके गार्जियन के रूप में जो है नाना फडणवीस, नाना फडणवीस को जो है इनका रिएजेंट बना दिया जाता है। नाना फडणवीस is made the guardian of, okay, he is made the guardian of what? Guardian of Savai Madhav Rao. Okay, so we see that this is the situation after the battle of Panipat, and what we see is that, okay, we see that the Marathas, ओके उस समय में जो है माधवजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये दो जो है कमांडर्स रहते हैं। दे आर द ओके टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द लेट 18th century, and what we see, okay, that the British, one side the British is supporting Raghoba, and the Marathas, they are supporting the claim of Savai Madhav Rao. So a situation of conflict is arising between the Marathas and the British, and we see that the Marathas were subdued in a series of wars. We see that the Marathas, they were subdued in a series of wars. The Marathas were subdued in a series of wars. And finally, what we see that the first Anglo-Maratha war is taking place, okay, between the British and the English, between the British and the Marathas, sorry, okay. And what we see is that इसमें जो है कोई जो है खुल के जो है वो विजेता नहीं घोषित होता है। There is no clear victor, okay. There is no clear victor. As such, the war came to an end. The war came to an end with the signing of Treaty of Salbai. Treaty of Salbai. ओके सालबाई की संधि जो है साइन की जाती है मराठा और अंग्रेजों के बीच में, और हम देखते हैं कि पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो उसका अंत हो जाता है। ओके एंड दिस ट्रीटी इज साइंड इन द ईयर 1782, एंड व्हाट वी सी इज, ओके, ब्रिटिश जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, जो ब्रिटिश है वो एक्सेप्ट करते हैं इनका अधिकार, सवाई माधव राव का अधिकार जो है पेशवा के रूप में वो एक्सेप्ट करते हैं, और सवाई माधव राव जो है वो पेशवा घोषित किए जाते हैं मराठा किंगडम के। और रघोबा जो रघुनाथ राव हैं, ठीक है ना, उनको जो है पेंशन पे भेज दिया जाता है। रघोबा राव इज सेंट टू, ओके, वाज पेंशनड एंड ही वाज मेड द, सी, Raghoba was pensioned, was sent on a pension, and Savai Madhav Rao is, okay, given the title of Peshwa. Title of Peshwa.
इसमें जो है दो लोगों ने जो है अहम भूमिका निभाई थी, ओके, सवाई माधवराव को उनका अधिकार दिलवाने में, और ये थे माधवजी सिंधिया और नाना फडणवीस। तो हम देखते हैं कि महाजी सिंधिया को जो है कुछ प्रांत दिए जाते हैं फॉर सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ द पेशवा। वी सी महाजी सिंधिया, he got the territories west of Yamuna river. So we see this is how the first Anglo-Maratha war it comes to an end, okay, with the signing of the Treaty of Salbai, and the territories west of Yamuna river were given to Mahaji Sindhya, okay, और फाइनली जो है सवाई माधवराव का जो क्लेम है एज अ पेशवा इट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश, एंड वी सी दैट फॉर 20 years, okay, for 20 years, for complete 2 decades, 2 दशक मतलब, ओके, 2 दशक मतलब 20 वर्ष, ओके, 1 दशक 10 वर्ष का होता है। सो हम देखते हैं कि फॉर कंप्लीट 2 decades there was peace between whom? Peace between the Marathas and the British. तो दोनों के बीच में जो है शांति रहती है, ओके, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। और अचानक हम देखते हैं कि जो दूसरा युद्ध होता है, जो सेकेंड मराठा वॉर होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है? What led to the, okay, Second Maratha War? We see that the Second Maratha War, it was fought between the years 1803 and 1805. नाना फडणवीस जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 1800 में। जो है नाना फडणवीस जो है, जो कि गार्जियन रहते हैं, ओके, हु इज द रीजेंट और द गार्जियन फॉर सवाई माधवराव, ओके, ही डाइड इन द ईयर 1800 एंड वी सी दैट नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद, नाना फडणवीस, ओके, he died in 1800, and with his death in the year 1800, what we see, okay, a struggle for power begins, okay, the struggle for power begins between whom? 3 लोगों के बीच में जो है, ओके, मराठा किंगडम का जो पावर है, जो अधिकार है, वो पाने के लिए जो 3 लोगों के बीच में जो है संघर्ष होने लगता है। एंड हु आर दीज पीपल? इट इज पेशवा बाजी राव सेकेंड, देन वी हैव, ओके, दौलत राव सिंधिया, and whom? And finally we see it is जसवंत राव होलकर। इन 3 लोगों के बीच में जो है अगला पेशवा कौन बनेगा, उसके लिए जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि जसवंत राव होलकर, ओके, एज वी प्रोसीड फर्दर व्हाट वी सी इज जसवंत राव होलकर जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता लेते हैं इन दोनों को हराने के लिए, पेशवा बाजीराव और दौलत राव सिंधिया को हराने के लिए उनकी सहायता लेते हैं। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली उनकी मदद करते हैं और कहते हैं कि आपको सब्सिडियरी अलायंस के जो टर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट करना होगा, ओके। अब जसवंत राव होलकर जो है वो वेलेस्ली की मदद से जो है इन दोनों को हरा तो देते हैं, लेकिन उनको सब्सिडियरी अलायंस में जाना मंजूर नहीं रहता है, ओके। सो व्हाट वी सी इज, okay, we see that Holkar
defeated Scindia and Bajirao with the help of Lord Wellesley. So we see that, okay, Holkar is able to defeat these two, Scindia and Bajirao, with the help of Lord Wellesley, but he refuses to accept the terms of the subsidiary alliance. And what we see is, okay, कि इन दोनों के बीच जो है, ब्रिटिश के बीच में जो है और ओके होलकर हैं, इनके बीच में जो है सिचुएशन जो है वो तनावपूर्ण हो जाता है, स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ओके व्हाट वी सी इज दैट द सिंधिया and the Bhosle, when they were defeated by the British, okay, they were also forced to okay Scindia and Bhosle were also asked to accept subsidiary alliance. ओके इनसे भी कहा जाता है कि आपको सब्सिडियरी अलायंस के जो ओके शर्त हैं उनको मानना पड़ेगा। ओके बट हम देखते हैं कि सिंधिया और भोसले जो हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं। ओके और वो क्या करते हैं, ओके दे डिक्लेयर वॉर, दे रिफ्यूज्ड and declared war against British. They refused and they declared war against British. Okay, now what we see is, okay, इसमें क्या होता है, अब चूंकि ब्रिटिश के साथ जो है वो होलकर है, अब होलकर की स्थिति जो है कुछ सही नहीं होती है, क्योंकि वो अंग्रेज जो है उनको सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो रिफ्यूज कर देते हैं सब्सिडियरी अलायंस की शर्तों को मानने के लिए। तो अब होलकर के पास बस एकमात्र उपाय रहता है कि वो वहां से जो है भाग के जो है वो पंजाब चले जाते हैं, क्योंकि वेलेस्ली को जो है वापस इंग्लैंड बुला लिया गया रहता है। अंग्रेजी हुकूमत जो है वो वेलेस्ली को वापस जो है इंग्लैंड बुला चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी सहायता उनको नहीं मिल पाती है और एज सच होलकर की स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है। ही फ्लेड टू पंजाब, ओके, एंड फाइनली पीस ट्रीटी वाज साइंड। सो वी सी दैट द ब्रिटिश they won the second Anglo-Maratha war. A peace treaty was signed between both. Okay, और इस शांतिपूर्ण जो संधि है, ओके, शांति स्थापित करने के लिए जो संधि ओके दोनों के बीच साइन होती है, इसके एवज में हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है इनको बहुत लाभ होता है। व्हाट वी सी इज, ओके, दैट द ब्रिटिश they gained Orissa, युद्ध को जीतने के बाद जो है अंग्रेजों को ओडिशा पे अधिकार मिल जाता है। ओके, जो यमुना नदी के उत्तर के जो क्षेत्र हैं, टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना एंड so the British, they are able to gain Orissa and territories north of Yamuna including Agra and Delhi. और शुरू से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली पे जो है कंट्रोल स्थापित करने के लिए हर शासक जो है वो परेशान रहा है, इतिहास गवाह है इसके लिए
क्योंकि दिल्ली से जो है पूरे देश के ऊपर नियंत्रण रखना जो है बहुत आसान था. इट वाज ओके द सेंट्रल प्लेस फ्रॉम वेयर द different parts of the country could be monitored in a better way. So each and every ruler's aim was to gain control over Delhi. So we see that the British, they gained Orissa, territories north of Yamuna, including Agra and Delhi. Okay, now what we see is, okay, हम देखते हैं कि अब तीसरा जो युद्ध होता है, तीसरा जो मराठा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है. What we see is that the third Anglo-Maratha war, which was fought between the British and the Marathas, it finally crushed Maratha power. It finally crushed Maratha power, and we see that this war was fought, the third Anglo-Maratha war. It was fought between the time period 1817 to 1818. तो तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध होता है वो 1817 और 1818 के बीच में होता है, और इसमें हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स इज द गवर्नर जनरल. ही इज द गवर्नर जनरल दैट टाइम. वारेन हेस्टिंग्स जो है, ओके, इनका 2 शासनकाल रहता है. पहला शासनकाल जो होता है वो 1773 से लेके 1785 होता है. ओके, देयर वर वारेन हेस्टिंग्स, ही बिकेम द गवर्नर जनरल ट्वाइस. He is the Governor General of India from, okay, we know he is the first Governor General of our country under British rule, and we see he was the first Governor General. His first time period was 1773 to 1785, and okay, 1813 to 1823. तो हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स is the Governor General of India from 1773 to 1785. Okay, this was the first time period when he was the Governor General of India, and the second time period was from 1813 to 1823. And we see that as far as the third Maratha war is concerned, we see that Bajirao, he attacked. बाजीराव क्या करते हैं, बाजीराव जो है वापस जो है जितने जो चीफ्स हैं उनको एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करके जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है युद्ध करने की तैयारी करते हैं. तो बाजीराव सबसे पहले जो है ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के ऊपर जो है अटैक करते हैं अपनी सेना तैयार करके. बाजीराव अटैक द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी in 1817, and we see that, okay, बाजीराव सेकंड, ओके, ये क्या करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग अ कॉन्फेडरेसी, एक अलायंस तैयार करते हैं. ठीक है ना, एक अलायंस तैयार करते हैं, और इस अलायंस में कौन कौन लोग होते हैं, कॉन्फेडरेसी ऑफ मराठा चिफ्टेंस, जो मराठा सरदार हैं लोग, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो सरदार हैं, ओके, उनको एकजुट करके जो है एक कॉन्फेडरेसी तैयार करते हैं, एक अलायंस तैयार करते हैं, एक बड़ी सेना तैयार करते हैं, और इस सेना की सहायता से जो है ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं 1817 में. और हम देखते हैं कि the British, they were able to defeat him. The British defeated him and his allies. उनके साथ जो युद्ध कर रहे थे उनको और
उनके साथ देने वालों को जो है अंग्रेज जो है वो हरा देते हैं। और ये जो पेशवा का जो ऑफिस है, द ऑफिस ऑफ द पेशवा, द ऑफिस ऑफ द पेशवा was abolished. ओके, तो एक तरीके से जो है, ठीक है ना, ऑफिस जो है पेशवा का वो एबोलिश कर दिया जाता है। और जो पेंशन जो बाजीराव है, ठीक है ना, बाजीराव सेकंड इज सेंट ऑन अ पेंशन टू बिथुर, उनको बिथुर भेज दिया जाता है। पेशवा बाजीराव को जो है, ओके, बिथुर भेज दिया जाता है। और ये बिथुर जो है कानपुर के पास में है। So we see that after these battles, after the one after the other, 3 battles were fought, 3 wars were fought between the Marathas and the British. And we see that after the third battle, after the third Anglo-Maratha war, the British were completely able to, okay, have control over the areas south of the Vindhyas. ठीक है, विंध्या पर्वत के जो दक्षिणी हिस्से का जो क्षेत्र है, वहां पे जहाँ पे मराठाओं का एक समय में शासनकाल हुआ करता था, वहां पे जो है अंग्रेज अपना कंट्रोल स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओके, द मराठास दे वर नॉट एबल टू प्रूव देमसेल्व्स आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ओके, now as you move in the chapter, you'll come across the, okay, you'll come across the next heading, and that is the claim to paramountcy. अब ये क्लेम टू पैरामाउंसी क्या था? जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि वारन हास्टिंग्स जो है 2 बार गवर्नर जनरल बनते हैं। ओके, व्हाट इज क्लेम टू पैरामाउंसी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लेम टू पैरामाउंसी। व्हाट वाज दिस? एक के बाद अगर एक हम देखेंगे कि जब कभी भी कोई गवर्नर जनरल बनते हैं ब्रिटिश शासन काल में, उनकी एक अलग ही नीति होती है। वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, बिना युद्ध किए जो है वो एक के बाद एक जो है भारतीय प्रांतों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने में वो लोग सक्षम होते हैं। कृपाकर इज हैविंग सम क्वेश्चन दैट, okay, in this what we see is, we see that as far as the claim to paramountcy was concerned, we see that this policy was initiated by Warren Hastings, okay, when he became the Governor General of India for the second time. And according to this policy, the British claimed that its authority was paramount. It was paramount, and okay, its authority was paramount or supreme. Hence, okay, its power was greater. Its power was greater than any Indian state. ओके, हमारे जो भारतीय जो राज्य हैं, ठीक है ना, जो किंगडम्स हैं, उनसे सर्वोपरि है। ओके, जो ब्रिटिश शासनकाल का जो ब्रिटिश का जो अधिकार है, ओके, इन भारतीय जो राज्य हैं, ओके, इनसे जो है ऊपर है। और एज सच दे वर जस्टिफाइड। एज सच व्हाट वी सी इज, ओके, अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, in order to protect its interest, the British were justified, okay, in annexing territories
हम देखते हैं कि अंग्रेज क्या कहना चाहते हैं। जो अंग्रेजी हुकूमत है वो कहती है कि अंग्रेजी हुकूमत के अधिकार से ऊपर जो है किसी भी भारतीय राज्य का अधिकार नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जो है अंग्रेजी हुकूमत का जो अंग्रेजी हुकूमत की जो ये सोच है कि अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने हितों को संरक्षित रखने के लिए जो है उनके पास जो है जो कोई भी वो दलील पेश करते हैं कि अगर उन्हें जो है भारतीय प्रांतों को जो है हड़पना पड़ेगा, उनको जो है किसी भी विधि से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना पड़ेगा, वो सारी चीजें न्याय संगत है। ओके, द ब्रिटिश वेर जस्टिफाइड, the British, they justified themselves that if in order to protect their interest they were annexing any of the Indian territories, any of the Indian states, it was okay, justified. So whatever they were doing, it was legal and they had the right to do this. They had the right to do this. अगर हम प्लासी के युद्ध को देखते हैं, बक्सर के युद्ध को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है, जो नवाब थे बंगाल के, इनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो रियायत लेने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर वो किलों की फोर्टिफिकेशन करते हैं, इफ दे आर फोर्टिफाइंग देयर forts, okay, or extending their fortifications, it was justified, and in order to do that they were also authorized. हम देखते हैं कि वो नए गांव खरीदते हैं, ऑफिशियल्स को ब्राइब करते हैं, ब्राइब करके उनसे जमींदारी के अधिकार लेते हैं। तो हर वो एक्टिविटी, हर वो गतिविधि जिसमें अंग्रेज शामिल है वो न्याय संगत था उनके हिसाब से। ओके, और इसी सिद्धांत को लेके जो है अंग्रेज आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि दिस पॉलिसी, द क्लेम टू पैरामाउंसी, इट लेड टू हैवॉक फॉर द इंडियन स्टेट्स। ओके, हमारे भारतीय राज्यों के पास जो है कोई विकल्प नहीं था। यस, यस, शी इज हैविंग सम क्वेश्चन। ओके, sir, just see once the meeting is paused or it is being recorded. एक बार देखिए सर, रिकॉर्ड हो रहा है कि पॉज हुआ है? यस स्टूडेंट्स, मैम रिकॉर्डिंग चालू है। चालू है? मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। यस मैम, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, ये कह रहे हैं कि किसी को कुछ पूछना है? Anybody, if you want to ask any question, you have my WhatsApp number, you can put forward your question. अगर कहीं पे आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। I will be answering you. ठीक है ना? मैम आपका WhatsApp नंबर क्या है लास्ट में? Okay, I will write it right now. अभी मैं लिख दे रही। I will write it right now. It is 8081016498. Okay, it is 8081016498. Okay, this is my WhatsApp number. If you have any queries, if you have any questions, you can ask me. I will be available. I will be answering you. ठीक है मैम मैम जो ग्रुप में भेजी है मैम, वो नोट्स लिखना है या रीड ना करना बेटा, है? आपको रीडिंग करनी है। मैं बार बार समझा रही हूँ, जो कुछ भी मैं